اور اب خبروں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اسرائیل حماس کے ساتھ طویل مدتی جنگ بندی کے ایک منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ حکومت انتہا پسند فلسطینی تنظیم حماس کے ساتھ طویل مدتی جنگ بندی کے ایک منصوبے پر غور کر رہی ہے۔ اس مناسبت سے اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کرنے والے ملک مصر نے مجوزہ جنگ بندی کے منصوبے کی تفصیلات اعلیٰ اسرائیلی سیکیورٹی حکام کو فراہم کر دی ہیں۔ 29 دسمبر کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی کابینہ اس پلان پر ابتدائی غور کر چکی ہے۔ اس منصوبے کی شرائط پر نتنیاہو کی کابینہ بدھ یعنی 1 جنوری کو ایک مرتبہ پھر بحث کرے گی۔ اس پلان میں فلسطینی تاجروں کی ایک بڑی تعداد کو اسرائیل میں داخلے کے پرمٹ جاری کرنے، جواباً حماس اسرائیل پر راکٹ داغنے والے انتہا پسندوں کے خلاف زیادہ سختی برتے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف کی جانے والی فضائی کارروائی کامیاب رہی۔ ساتھ ہی امریکی حکام نے کہا کہ خطے میں امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزید کارروائیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ امریکہ نے اتوار کو عراق اور شام میں کتائب حزب اللہ نامی عسکریت پسند گروہ کے اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی دلیل ہے کہ یہ کارروائی اتحادی افواج پر حالیہ حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عراق اور شام میں ایران نواز ملیشیا کے خلاف امریکی کارروائی۔ امریکہ نے ایران نواز ملیشیا کے خلاف کارروائی کو بتایا کامیاب۔ خطے میں امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزید کارروائی کی دی دھمکی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراقی ملٹری بیس پر راکٹ حملے میں امریکی سویلین کانٹریکٹر کی ہلاکت کے جواب میں اتوار کو امریکی فوج نے حزب اللہ ملیشیا کے خلاف کارروائی کی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شام اور عراق میں کی جانے والی فضائی کارروائی سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ اس بریفنگ کے بعد وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع مارک ایسپر اور امریکی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملے نے شام میں اور عراق میں کی جانے والی کارروائی سے متعلق میڈیا کو آگاہ کیا۔ وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا کہ فضائی کارروائی کامیاب رہی ہے اور صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ مزید کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ As we reported earlier today, the Department of Defense took offensive actions in defense of our personnel and interests in Iraq by launching F-15 Strike Eagles against 5 targets associated with Kataib Hezbollah, which is an Iranian-sponsored Shiite militia group. The targets we attacked included 3 targets in western Iraq and 2 targets in eastern Syria that were either command and control facilities or weapons caches for Kataib Hezbollah. The strikes were successful. The pilots and aircraft returned back to base safely. I would add that in our discussion today with the President, we discussed with him other options that are available. And I would note also that we will take additional actions as necessary to ensure that we act in our own self-defense and we deter further bad behavior from militia groups or from Iran. پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ وہ ایران کے خلاف ایسا کوئی قدم اٹھانے نہیں جا رہے ہیں جس سے امریکیوں کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ Against an Iraqi facility threatened American forces. This has been going on now for weeks and weeks and weeks. This wasn't the first set of attacks against this particular Iraqi facility and others where there were American lives at risk. And today, what we did was take a decisive response that makes clear what President Trump has said for months and months and months, which is that we will not stand for the Islamic Republic of Iran to take actions that put American men and women in jeopardy. We will always honor that commitment to take decisive action when that takes place. And we continue to demand that the Islamic Republic of Iran act in a way that is consistent with what I laid out back in May of 2018 for what it is that we expect Iran to do so that it can rejoin the community of nations. And with that, I'll turn it over to the Secretary of Defense. عراقی سیکیورٹی اور ملیشیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اتوار کو عراق میں کی جانے والی امریکی فضائی کارروائی میں کم از کم 25 جنگجو ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے شام کی سرحد سے متصل مغربی ضلع قائم میں ملیشیا گروپ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا، جس میں کتائب حزب اللہ کی کم از کم 4 کمانڈرز مارے گئے۔
रवां महीने के आगाज में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने खबरदार किया था कि अगर ईरान और मिलिशिया ग्रुप की जानिब से अमरीका या उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने शाम की सरहद से मुत्तसिल मगरबी ज़िला कायम में मिलिशिया ग्रुप के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया, जिसमें कताइब हिज़्बुल्लाह के कम से कम 4 कमांडर्स मारे गए हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक फ़िज़ाई कार्रवाई में शाम में 2 और इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया ग्रुप के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया था। पेंटागन के मुताबिक जिन मकामात पर हमले किए गए इनमें असलहा ज़ख़ीरा करने के मकाम समेत कमांड एंड कंट्रोल का मरकज़ भी शामिल है, जहाँ से गैर मुल्की अफवाज पर हमले की मनसूबाबंदी की जाती थी। अमरीका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कताइब हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं ने जुमे को इराक़ी शहर कुर्क में 30 रॉकेट फायर किए, जिसके नतीजे में एक अमरीकी सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर हलाक और 4 अमरीकी और 2 इराक़ी फोर्सेस के एहलकार ज़ख्मी हुए थे। पेंटागन के तर्जुमान जोनाथन हफ ने एक बयान में कहा है कि अमरीकी मुसल्लह अफवाज ने अपने दिफा में कताइब हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की है। उनके बकौल इस कार्रवाई के नतीजे में कताइब हिज़्बुल्लाह की गैर मुल्की अफवाज पर हमलों की सलाहियत को नुकसान पहुँचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान ने इराक में अपनी हिमायत याफ्ता शिया मिलिशिया के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इसे खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी और इराकी सरजमीन पर अस्करी जारहियत करार दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान अब्बास मूसवी ने हमलों की मजम्मत करते हुए अमरीका पर जोर दिया है कि वो इराक की खुद मुख्तार और इलाकाई सालमियत का एहतराम करे और इसके अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद करे। अब्बास मूसवी ने कहा कि इन हमलों से अमरीका के उस दावे की भी नफी होती है कि वो शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि इसने इन अफवाज को निशाना बनाया है जिन्होंने गुज़िश्ता बरसों में दाइश को शदीद नुकसान पहुंचाया है। अब्बास मूसवी का यह भी कहना था कि इन हमलों से वाज़ेह है कि अमरीका दहशतगर्दी का हामी है और इसे दीगर ममालिक की आज़ादी और खुद मुख्तारी का कोई लिहाज नहीं है। उधर इराक में ईरान नवाज मिलिशिया ने गुज़िश्ता हफ्ते किरकुक में अमरीकी फौजी कंपाउंड पर हमला करके अमरीकी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कताइब हिज़्बुल्लाह या हिज़्बुल्लाह ब्रिगेड के तर्जुमान मोहम्मद मोही का कहना है कि उन पर यह इल्जामात बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने अमरीका के हमले का बहाना बनाकर हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाया। حادثة الاستهداف قاعدة الكيوان كذريعة لاتهام كتائب حزب الله بهذه المسؤولية، وهذه ذريعة كاذبة وواهية ولا يمكن أن تتخذ كمبرر لاستهداف فصائل موجودة على الحدود العراقية تدافع عن। आगे बढ़ेंगे। मोगादिशु में एक कार बम धमाके में 79 अफराद की हलाकत के एक दिन बाद अमेरिका ने सोमालिया में अल-शबाब के ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। अमेरिका की अफ्रीकी कमान ने इन हमलों में अलकायदा से वाबस्ता अस्करियत पसंद गिरोह अल-शबाब के जंगजुओं के कम से कम 4 अस्करियत पसंदों की हलाकत का दावा किया है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में कार बम धमाके के नतीजे में दर्जनों अफराद की हलाकत और 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने के बाद अमेरिका की अफ्रीका कमान ने सोमालिया में अल-शबाब के ठिकानों पर फिजाई हमले किए। अमेरिका की अफ्रीका कमान ने हमलों के नतीजे में अल-कायदा से वाबस्ता अल-शबाब जंगजू ग्रुप के मुतादिद अस्करियत पसंदों की हलाकत का दावा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जुनूबी सोमालिया को फाल जारहियत वाला इलाका करार देने के बाद अमेरिका ने ये फिजाई हमले किए। अमेरिकी अफ्रीका कमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि सोमालिया की वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर अमेरिकी अफ्रीका कमान ने सोमालिया के 2 इलाकों क्यूनो बारू और क्यूलो बारू में अल-शबाब के 2 ठिकानों पर 3 फिजाई हमले किए। ख्याल रहे कि सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए बम धमाके के बाद ही अमेरिकी फिजाई हमले किए गए। इस बम धमाके में कम से कम 79 अफराद हलाक हो गए थे। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी जुनूबी सोमालिया को दारुल हुकूमत से मिलाने वाले मसरूफ जंक्शन पर कायम चेक पोस्ट से टकरा दी थी। इस बम धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन माजी में अस्करियत पसंद तंजीम अल-शबाब की तरफ से इस तरह के हमले किए जाते रहे हैं। अल-शबाब अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत वाली सोमाली हुकूमत को इक़्तिदार से अलग करना चाहती है। सोमाली सदर मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद ने मोगादिशु में हुए बम धमाके की मजम्मत करते हुए इसे दहशतगर्दी की घिनौनी हरकत करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
सीरियन अपोजिशन डिफेंस मूवमेंट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा गया है कि शाम के शहर हलब में रूस और शामी फौज हमले जारी रखे हुए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स का भी कहना है कि रूस के जंगी तैयारे इलाके में फजाई बमबारी कर रहे हैं। हुकूक इंसानी की तंजीम का कहना है कि रूस के जंगी तैयारों ने 19 हमले किए हैं। आलमी ताकतों के साथ एटमी मुआहिदा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तामील के बगैर टूट जाने का खतरा है, यह कहना है रूस के वजीर खारजा सरगई लारोव का। रूस के वजीर खारजा ने मास्को में अपने ईरानी हममनसब से मुलाकात की। ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लारोव ने कहा कि रूस अमेरिका और यूरोपीय यूनियन दोनों से मुकम्मल तामील का मुतालबा करेगा। ऐसी सूरत में ईरान इस मुआहिदे के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों की तामील करने में वापस आ सकेगा। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर इस मुआहिदे को अब मौजूद नहीं समझा जाना चाहिए। Деструктивной линии, которую Вашингтон продолжает, это важнейшее завоевание международной дипломатии, имея в виду совместный всеобъемлющий план действий, находится под угрозой развала. موضع کشورهای اروپایی درباره برجام گرچه از نظر سیاسی عموما حمایت کردن اما از نظر عملی اقدامی نکردن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و همینطور برای اجرای تعهدات خودشون و لذا ایران و روسیه در مورد اینکه اروپا باید تعهدات خودش رو در برجام اجرا بکنه هم نظر هستن و این نظر رو ما در کمیسیون مشترک هم به شرکا खबर इराक से है, जहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इराक के मुकद्दस शहर नजफ में यूनिवर्सिटी के तलबा भी सड़कों पर निकले और हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। इराक के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत से नाला हजारों अवाम मुजाहरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये एहतजाजी मुजाहरे खत्म नहीं हो रहे हैं। खासकर जनूबी इराक में हजारों अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज है। नजफ के कूफा यूनिवर्सिटी के तलबा भी सड़कों पर निकले और मुल्क गिर एहतजाज का हिस्सा बने। यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुल्की पार्लियामेंट की तहलील का मुतालबा करते हुए इराक के वजीर आजम के लिए नामजद नामों को मुस्तरद कर दिया। तलबा ने अपनी क्लासेस का बाइकआउट किया और उस वक्त तक एहतजाज करने का अज़्म किया जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। اليوم طلبت جامعة الكوفة بوقفة احتجاجية من أجل مطالبنا اللي هي إنه نطالب بحل البرلمان وبدء انتخابات مبكرة، وإحنا يعني الدافع الأكبر كل هذا هي دماء الشهداء اللي بدأوا هاي المسيرة، وإحنا راح نتممها بإذن الله حين الحل النهائي اللي نريده والشعب كله يريده। दूसरी जानब हुकाम ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के जेर कब्जा 2 अहम ऑयल फील्ड्स की बाजियाबी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये दोनों ऑयल फील्ड्स मुल्की दारुल-हुकूमत बगदाद के जुनूब मशरिक में वाक़े शहर नासिरिया में है। इन तेल के कुओं के अहाते में सैकड़ों मुजाहिरीन हफ्ता यानी 28 दिसंबर को दाखिल हुए थे। इन ऑयल फील्ड से तेल की पैदावार हफ्ते के दिन से बंद है। मुजाहिरीन ने इन ऑयल फील्ड्स की बिजली काटने के अलावा तमाम मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया था। कब्जे के वक्त से ऑयल फील्ड्स का कंट्रोल स्टेशन भी पूरी तरह बंद है। नासिरिया के तेल के कुओं से रोजाना की बुनियाद पर 80 से 85 हजार बैरल तेल हासिल किया जाता है। मुल्की पार्लियामेंट ने नए इंतखाबी कवानीन मुतारिफ करवा दिए हैं। इसके बावजूद एहतजाज का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि बगदाद समेत मुल्क के शिया अक्सरियत वाले जुनूबी हिस्सों में मुजाहिरीन गुज़िश्ता 2 माह से एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन बदउनवानी, बेरोजगारी, बुनियादी सहूलतों के फुकदान, सरकारी महकमों के गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुल्क का मौजूदा सियासी निज़ाम मफलूज होकर रह गया है और मौजूदा सियासी निज़ाम से आम लोगों को भला होने वाला नहीं है, इसीलिए पूरे सियासी निज़ाम को तब्दील किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि मुल्क का आम आदमी और खासकर नौजवान तबका नौकरियों और रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और वो कस्मपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वही मुल्क का अशराफिया तबका लूट खसोट का बाजार गर्म किए हुए है। बरहम मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से नौकरियां दी जाएं और इराकियों को बेहतर शहरी सहूलियात फराहम करने के लिए फौरी और ठोस इक़दामात किए जाएं। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद गुज़िश्ता माह
वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे मंजूर कर लिया गया था। आदिल अब्दुल महदी के इस्तीफे के बाद नया वज़ीर आज़म मुकर्रर करने की कई हतमी तारीखें दी गईं, लेकिन मुल्की सदर बरहाम सालेह और पार्लिमान इसमें अब तक कामयाब नहीं हो पाए। इन मुजाहरों में अब तक 450 से ज्यादा अफराद हलाक, जबकि हजारों अफराद जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर लबनान से है, जहां मुजाहिरीन ने दारुल-हुकूमत बैरूत में एक तिजारती बैंक में जबरदस्ती घुसकर एहतजाज किया और उनके जरिए जमा कराए गए पैसे लौटाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन औदी बैंक ब्रांच के फर्श पर बैठ गए और बैंक पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बैंकों से अमरीकी डॉलर्स निकालने की हद के नए उसूल और जवाबित की मुखालफत करते हुए एहतजाज भी किया। अफ्रीकी मुल्क सूडान के दारुल-हुकूमत खुर्तूम की एक अदालत ने सिक्योरिटी फोर्सेस के 27 एहलकारों को एक ज़ेरे हिरासत एहतजाजी पर तशद्दुद करने के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई है। जेल में तशद्दुद से हलाक होने वाला अहमद अल खैर नामी एक स्कूल टीचर था। अल खैर को रवां बरस 31 जनवरी को हिरासत में लिया गया था और 2 दिन बाद वो जेल में ही तशद्दुद की वजह से हलाक हो गया। मौत की सजा पाने वाले 27 अफराद पुलिस एहलकार हैं। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में जंगबंदी की खबरों की तरदीद की है। तालिबान ने इस ताल्लुक से अमरीकी मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेबुनियाद बताया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तालिबान काउंसिल के इजलास में अफगानिस्तान में आरजी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफगानिस्तान के तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन इत्तलात की तरदीद की है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तालिबान की सफ़ों में बाज़ मामलात पर इख्तिलाफ़ात की इत्तलात को प्रोपेगेंडा करार दिया। तालिबान के तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि तालिबान का जंगबंदी का ऐलान करने का कोई इरादा नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि अमेरिका ने तालिबान से कार्रवाइयों में कमी करने को कहा था और इस मामले पर तालिबान की क़यादत गौर भी कर रही है। उनका कहना था कि तालिबान क़यादत ने इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया है, न ही इस मामले पर तालिबान की क़यादत में कोई इख्तिलाफ है। जंगबंदी के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ऐसी कोई पेशरफ्त हुई तो इसके बारे में आगाह किया जाएगा। वाज़ेह है कि अमेरिकी मीडिया में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि तालिबान काउंसिल के इजलास में अफगानिस्तान में आरजी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरबराह ने जंगबंदी की मंजूरी अभी नहीं दी है, लेकिन जंगबंदी अमेरिका के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत तक होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तालिबान काउंसिल के इजलास के बाद मुज़ाकराती टीम कतर के लिए रवाना हो गई है और अमन मुआहिदे पर दस्तखत के 2 हफ्ते के अंदर इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू होने की तवक्को है। अमन मुआहिदे का बुनियादी नुक्ता अफगान मुतहारिब गुरोहों के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात है और आरजी जंगबंदी की तजवीज़ अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन जुल्म खलीलजाद ने मुज़ाकरात के गुज़िश्ता अदवार में पेश की थी। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल सूबा नक़ार में तालिबान में अफगान फौज की एक चौकी पर हमला किया गया था, जिसमें 17 एहलकार हलाक हो गए थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया था कि हमले में हुकूमत नवाज मिलिशिया के 21 एहलकार हलाक हुए। ये हलाकत खेज़ कार्रवाइयाँ एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका की सरबराही में गैर मुल्की फौज के साथ तालिबान क़यादत मुबैना तौर पर 1 हफ्ते की आरजी जंगबंदी पर बातचीत कर रही है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अफगानिस्तान की जंग में गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान 1 लाख से ज़ायद शहरियों की जानें ज़ाय हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम फ़रीक़ीन पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान में 18 साल से जारी जंग को ख़त्म करने और अमन बहाल करने के लिए कोशिशों को तेज़ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कब्रस की एक अदालत ने 19 साल बरतानवी खातून के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए उसे इल्ज़ाम के ताल्लुक से साजबाज का कसूरवार ठहराया है। 19 साल बरतानवी खातून ने दावा किया था कि इसके साथ 12 इजरायली अफराद ने इज्तिमाई इस्मत दरी की है। जज ने कहा कि मुद्दा ने हकीकत नहीं बताई और अदालत में आसान और गुस्ताखाना बयानात के साथ अदालत को धोखा देने की कोशिश की। ताहम बरतानवी खातून की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। From the
course of trial, our client was found guilty of the offense of public mischief. The decision of the court is respected, but we respectfully disagree. We are planning to appeal within the provided deadline in the law to the Supreme Court, and we hope that our client will find justice in Cyprus. Same question. अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर व्हाइट सेटलमेंट के एक चर्च में होने वाली फायरिंग से कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग के दौरान 2 अफराद की जवाबी फायरिंग से हमलावर की हलाकत भी हो गई। हमलावर पर फायरिंग करने वाले दोनों अफराद इबादत के मौके पर सिक्योरिटी की ड्यूटी देने वाले रजाकार थे। पुलिस ने हलाक होने वालों के नाम जाहिर नहीं किए। इसी तरह चर्च के अंदर फायरिंग करने वाले का नाम भी आम नहीं किया गया। व्हाइट सेटलमेंट के चर्च पर जब फायरिंग हुई उस वक्त 250 अफराद इबादत में मसरूफ थे। I heard the first shot go off and I wasn't sure what. I smelled the cordite and then He knocked me down, so put her down before I got on top of her. And that's all I could do. So, anyway, but I just want to make sure she's okay. Well, the only problem is that we have to understand that evil is everywhere and that no matter preaching or teaching, if evil's going to try to do something horrible, evil's going to do something horrible. That's all it is. All you can do is do your best to stop evil from happening to more people. That's all you can do. And you have to go on, and we have to understand that this poor man, I don't know what his mental state was, but उधर बर्लिन में एक हमलावर ने एक कैफे को लूटने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने बर्लिन के चेक पॉइंट चार्ली के नजदीक एक कैफे में डकैती करने की कोशिश की। उसने फायरिंग भी की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा, जिसके बाद वो फरार हो गया। अभी यह वाज़ेह नहीं है कि इस वाकये में कोई जख्मी भी हुआ है। पुलिस का कहना है कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं। यमन के जनूबी सूबे में फौजी ग्रेजुएशन परेड के दौरान धमाका हुआ। धमाके में कम से कम 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। सूबे को काबू करने वाले फौजी दस्तों ने ट्विटर पर जारी बयान में हूसी बागियों पर परेड पर मिसाइल दागने का इल्जाम आयद किया है। अज़ाली के शुमाली हिस्से पर काबिज हूसी बागियों ने अब तक इस हमले पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। खबर ऑस्ट्रेलिया से है, जहां लगी जंगलाती आग अब बड़े कारोबारी शहर मेलबर्न के नवाह में पहुंच गई है। करीबी रिहायशी बस्तियों के मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत दी गई। आग मेलबर्न शहर से 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई कस्बे बेंडोरा के जंगल को अपनी लपेट में ले चुकी है। इसी कस्बे के करीब 2 बड़ी यूनिवर्सिटियों के कैंपस भी वाक़ हैं। इस जंगलाती आग से अब तक 10 अफराद हलाक और 1000 मकानात जलकर खाकिस्तर हो चुके हैं। अभी भी मौसम खुश्क और तेज हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और मजमूई सूरत हाल तशवीशनाक बताई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जंगलाती आग की वजह से नए साल की आतिशबाजी के प्रोग्राम को मंसूख कर दिया गया। हुक्काम ने दारुल हुकूमत कैनबरा और दूसरे मकामात पर नए साल के मौके पर होने वाली आतिशबाजी को मंसूख कर दिया। जंगलाती आग की वजह से सिडनी शहर के तारीखी आतिशबाजी के मंसूखी का भी इम्कान है। आतिशबाजी को मंसूख करने की वजह सन 2019 के महीने अक्टूबर से लगी जंगलाती आग है। ये आग 3 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा रकबे को जलाकर राख कर चुकी है। सिडनी के करीबी जंगलात में 93 मकामात पर आग लगी हुई है। नए साल पर सिडनी की आतिशबाजी को देखने के लिए 1 मिलियन सयाह हर साल वहां पहुंचते हैं और इससे मुल्की खजाने को 91 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का मुनाफा होता है। पाकिस्तान ने काबुल में वीजा सर्विस फिर से बहाल कर दी है। ताल्लुकात में बेहतरी के बाद अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने ने अपनी तमाम तर कौंसलर सर्विसेज बहाल कर दी हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा है कि काबुल में हमारे सफारतखाने ने तमाम कौंसलर सर्विसेज बहाल कर दी हैं। नवंबर में पाकिस्तानी सफारतकारों की मुबैना हरासानी के बाद वीजा सर्विस बंद कर दी गई थी। अफगान शहरियों की एक बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान आती है। इनमें से ज्यादातर अफराद तिजारती, इलाज, तालीम और पाकिस्तान में आबाद अपने रिश्तेदारों से मुलाकात जैसे मकासद के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान 20 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी भी कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता कई अरशों से जारी जंग की वजह से हालात इंतहाई मखदूश हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर कौंसलर सिलेक्शन को
तकरीबन 2000 वीजा दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपने फौजी हुक्काम और सिफारतकारों को हिदायत की है कि वो मुल्की दिफा और जोग्राफियाई सलामती के लिए चौकस हो जाएं। कम्युनिस्ट मुल्क के सुप्रीम लीडर का बयान सरकारी मीडिया पर नश्र किया गया। किम ने बयान हुक्मरान वर्कर्स पार्टी के होने वाले इजलास में दिया। उन्होंने मुल्क की इक्तिसादियात को मुतहर्रिक करने के लिए जरूरी इक़दामात का ऐलान किया। शुमाली कोरिया की वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हफ्ता यानी 28 दिसंबर से शुरू है। इम्कान है कि इस मीटिंग में किम जोंग उन अमेरिका के साथ इख्तिलाफात के शिकार जौहरी मुज़ाकराती अमल को मुअत्तल कर सकते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी के वज़ीर आला के ऐन बयान के मुताबिक यूपी की पुलिस कमजोरों, बुजुर्गों और खवातीन पर जुल्म और बर्बरियत कर रही है। प्रियंका गांधी ने एनआरसी के खिलाफ भी मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनआरसी के जरिए मुल्क के गरीबों, मजदूरों, खवातीन और अक़लियत हुकूमत डर और खौफ में जीने को मजबूर करना चाहती है। जागरूकता अभियान नहीं है, ये झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है। इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि कोई एविडेंस दिखाइए, टेलीफोन की बिल दिखाइए 1970 की, कहां से निकालेगा? जिस तरह से नोटबंदी में सबको प्रताड़ित किया, उस तरह से ये भी प्रताड़ित करेगा ये कानून। और इस कानून का आधार एकदम संविधान के खिलाफ है। तो जो अभियान निकालेंगे निकालें। आज तमाम विद्यार्थी सड़क पे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है एनआरसी। एनआरसी का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब बखैर।